الله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ ہر قسم کی بڑائی، کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سماء کے لیے لاکھ و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا۔ بعدہ صلاۃ و سلام و تمام ہی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم پر سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر معبود فرمایا، اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور معزز خواتین اسلام، اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے مسنون خطبے کے بعد، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر صحابہ کرام کے مقام اور ان کے مرتبے اور ان کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ صحابہ کرام یہ ہیں کون؟ اصل میں یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ان کی سیرتیں اور ان کی زندگیاں ہمارے آپ کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا والوں کے لیے اسوہ اور نمونہ اور آئیڈیل ہیں۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین جو لوگ تھے وہ صحابہ کرام تھے۔ سبحان اللہ، یہ بڑی عمدہ صفات کے، بڑی اچھی خوبیوں کے مالک تھے۔ علم ان کا بڑا گہرا تھا، گفتگو یہ کم کیا کرتے تھے لیکن عمل میں پیش رہتے تھے۔ باتیں ان کی بڑی مختصر ہوتی تھیں لیکن عملی زندگی میں یہ سب سے آگے رہا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میں جس دور میں جس زمانے میں بھیجا گیا ہوں، یہ دور یہ زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے، اور اسی زمانے میں صحابہ کرام موجود تھے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ اندازہ لگائیں، دل کے اعتبار سے سب سے زیادہ پاکیزہ اگر پیغمبر کے بعد کوئی جماعت تھی وہ صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ اصل میں بات جو مجھے کرنی ہے، ذوالحجہ کا مہینہ یہ چل رہا ہے اور آج تقریباً 21 تاریخ ہے۔ 18 ذوالحجہ کی تاریخ کو ایسا ہوا ہے، ایک بہت بڑا دردناک سانحہ اور واقعہ پیش آیا ہے۔ وہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم مظلوم صحابی
اور شہید صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا دردناک اور غمناک شہادت کا جو واقعہ پیش آیا ہے وہ عثمان غنی کا ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج کے خطبہ جمعہ میں مختصر طور پر ان کی زندگی میرے لیے، آپ سبھی لوگوں کے لیے اور مرد و خواتین کے لیے اسوہ اور آئیڈیل ہے، تو آج کے خطبہ جمعہ میں کچھ باتیں رکھی جائیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ ساری باتیں ہو نہیں سکتی ہیں، میں مختصر طور پر انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کی زندگی کے چیدہ کچھ واقعات چن کر کے لایا ہوں جو آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سبھی لوگوں کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی اور ان کی سیرتوں کو اپنانے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، آمین رب العالمین۔ آپ جانتے ہیں عثمان غنی کی شہادت کے بعد اس امت میں جو فتنوں کا دروازہ کھلا ہے، اللہ کی قسم آج تک بند نہیں ہوا ہے۔ اور عثمان غنی کی شہادت سے پہلے اس امت میں کوئی فتنہ نہ تھا۔ جب تک محمد الرسول اللہ تھے، صدیق اکبر تھے، عمر ابن خطاب تھے، جب تک اس امت میں کوئی فتنہ نہ تھا۔ عثمان غنی کی شہادت کیا ہوتی ہے؟ ایک مظلومانہ طریقے سے اس کے بعد امت میں جو فتنے کے دروازے کھلے ہیں آج تک بند نہیں ہوئے ہیں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی اس امت کی اللہ حفاظت فرمائے۔ آج مسلمانوں کی تلواریں مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کی زبانیں مسلمانوں کے خلاف چل رہی ہیں، نعوذ باللہ۔ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگائے جا رہے ہیں۔ ایسے فتنے اس امت میں آئے ہیں، یہ سارے عثمان غنی کی شہادت کے بعد آئے ہیں میرے بھائیوں۔ کون ہے یہ عثمان غنی؟ خلیفہ راشد میں ان کا شمار ہوتا ہے، خلیفہ سوم ہیں یہ، سبحان اللہ۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم ہیں۔ اچھا سنو، پہلے دو خلیفہ جو گزرے ہیں نا وہ خسر ہیں محمد الرسول اللہ کے، صدیق اکبر اور عمر ابن خطاب، اور بعد میں جو دو خلیفہ آئے ہیں نا یہ دونوں داماد ہیں، سبحان اللہ۔ کون؟ عثمان غنی ہیں اور علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ داماد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عثمان غنی کو بے پناہ خوبیوں سے نوازا تھا۔ میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ باتیں رکھوں گا، اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان کا نام جو آتا ہے عثمان ابن عفان، والد کا نام تھا عفان، کنیت ان کی تھی ابو عبداللہ، بیٹے کا نام تھا عبداللہ، اپنی کنیت انہوں نے لکھ دی ابو عبداللہ۔ اسی طریقے سے ہاتھی والا جو واقعہ مکے میں پیش آیا تھا نا، اس کے 6 سال کے بعد یہ پیدا ہوئے تھے، اور ہمارے آپ کے نبی محمد الرسول اللہ ہاتھی والا جو واقعہ پیش آیا تھا نا اس سال پیدا ہوئے تھے، یعنی محمد الرسول اللہ سے یہ 6 سال کے چھوٹے تھے۔ اچھا، اسی طریقے سے اسلام لانے میں ان کا 4واں نمبر تھا، 4 نمبر ہے سبحان اللہ ان کا اسلام لانے میں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے مکے میں 2 قبیلے تھے، 2 خاندان تھے جن کو لیڈرشپ کرنے کا حق حاصل تھا، یہی مکے کی قیادت کرتے تھے، ایک بنو امیہ اور دوسرا بنو ہاشم۔ یہ دونوں خاندان مکے میں معزز تھے، سبحان اللہ۔ عثمان غنی کا جو تعلق تھا نا یہ بنو امیہ سے تھا، اور پیارے نبی محمد الرسول اللہ کا جو تعلق تھا نا یہ بنو ہاشم سے تھا۔ 5ویں پشت میں جا کر کے عثمان غنی اور محمد الرسول اللہ کا نسب جا کر کے مل جاتا ہے، اللہ اکبر۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ عثمان غنی کی جو نانی تھی نا یہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی قریبی تھی، اور بعض نے پھوپھی لکھا ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ کی پھوپھی تھی۔ اس لحاظ سے میرے بھائیوں یہ ساری باتیں آپ ذہن میں رکھیں تو اندازہ ہو جائے گا کہ عثمان غنی خاندان کے لحاظ سے، قرابت داری کے لحاظ سے، رشتہ داری کے لحاظ سے پیارے نبی محمد رسول اللہ کے بڑے قریبی تھے، سبحان اللہ۔ ایک بات سنیے اور آپ سبھی لوگوں کے لیے، سبحان اللہ، سب سے پہلے میرے لیے ہے، اس کے بعد آپ سبھی لوگوں کے لیے ہے۔ عثمان غنی ایک ایسی شخصیت ہے نا، زمانے جاہلیت میں ان کا بڑا مقام تھا، بڑا درجہ تھا، نیک آدمی تھے، صالح آدمی تھے۔
ज़माने जाहिलियत में उस्मान गनी को अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम बुराइयों से महफूज रखा था। माशरा बिगड़ा हुआ है, शराब आम, चोरी आम, जिना आम, बदकारी आम, लूट मार आम, कत्लो गारत गरी आम, सारी बुराइयां सुबहान अल्लाह ये मक्के में आम थी, मक्की मुआशरे में आम थी। कुर्बान जाए उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर, इतने नेक थे, इतने स्वाले थे, इन्होंने जिंदगी में कभी कोई बुराई न की। सुभान अल्लाह। आज अफसोस होता है नौजवानों के लिए अगर कोई आइडियल होना चाहिए ना, वो उस्मान गनी होना चाहिए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। दुआ करे अल्लाह ताला इनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। आज क्या होता है जानते हैं, अगर हम और आप किसी बात पर गुफ्तगू करें, लोग कहते हैं जमाना खराब है, मुआशरा खराब है, समाज बिगड़ा हुआ है, हर आदमी ऐसे ही है। अरे जनाब आली उस्मान गनी के दौर में भी जमाना खराब था, मुआशरा बिगड़ा हुआ था, शराब और ज़िना ये आम, लेकिन कुर्बान जाए उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर माशरा बिगड़ा है, इसका हवाला न दिया, जमाना खराब है, इसका हवाला न दिया, समाज बिगड़ा है, इसका हवाला न दिया, बल्कि फरमाते हैं फवल्लाहि मा ज़नैतु फी जाहिलिया वला फिल इस्लाम। उस्मान गनी फरमाते हैं अल्लाह की कसम है मैंने ज़माने जाहिलियत में ना ज़िना किया था और ना इस्लाम लाने के बाद ज़िना किया था। कुर्बान जाइए, ये हमारे लिए आपके लिए आइडियल है। आज आप रोना रोते हैं, समाज बिगड़ गया है, मुआशरा बिगड़ गया है। अल्लाह की कसम है अगर आप अच्छा बनना चाहते हैं मुआशरा आपको नहीं बिगाड़ेगा इंशाअल्लाह। बोलो आज समाज आपके अखलाक पर, आपके किरदार पर कोई असर नहीं डाल सकता है। अगर आप सही रहना चाहें, आप सही बनना चाहें, उस्मान गनी को देख लो, सारा मक्का बिगड़ा हुआ है। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ना जिना कभी किया जिंदगी में, ना कभी शराब को हाथ लगाए मेरे भाइयों। और मैं आपको बताऊं सुभान अल्लाह, यही वजह है इनके हवाले से मक्के में इतने मोतबर थे, लोग इतनी मोहब्बत करते थे कि माएं अपने बच्चों को लोरियां सुनाती थी, गोद में लेती थी ना तो माएं ऐसा बोलती थी ओ हिब्बुका वर रहमान हुब्बा कुरैशिन ले उस्मान, ऐ मेरे बच्चे रहमान का वास्ता, अल्लाह का वास्ता, मैं तुझसे ऐसे मोहब्बत करती हूं जैसे कुरैश उस्मान से मोहब्बत करते। सुभान अल्लाह। देख रहे जमाने जाहिलियत की बात है ये। उस्मान गनी लोगों के दिलों में बसते थे, लोग उस्मान गनी को चाहते थे, लोग उस्मान गनी को प्यार करते थे। आप भी लोगों के दिलों में बसे और आप भी लोगों के दिलों में आए। माएं अपने बच्चों से कहती थी रहमान का वास्ता, अल्लाह का वास्ता, मैं तुझे ऐसे प्यार करती हूं जैसे मक्के वाले उस्मान से प्यार करते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। दुआ करें अल्लाह ताला इनकी खिदमत कबूल फरमाए। जानते हैं उम्र इनकी 30 साल के आसपास में थी जब उमर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए और आकर के कहा उस्मान एक बात मैं आपको बताऊं। कहा क्या है? कहा आप अक्लमंद आदमी है, होशियार आदमी है, अल्लाह ने अक्लो फहम और फरासत से नवाजा है। आप नहीं देख रहे आपकी कौम के लोग जिनकी इबादत करते हैं, बंदगी करते हैं, ना वो सुनते हैं, ना देखते हैं, ना नफा पहुंचाते, ना नुकसान पहुंचाते हैं। उस्मान कभी आपने गौर किया? बोले हाँ मैंने भी गौर किया है। कहा चलो मैं आपकी मुलाकात कराता हूं एक ऐसी शख्सियत से जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने सारी इंसानियत के लिए नबी रसूल बना करके भेजा। नाम है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस्मान गनी ने कहा चलो अभी चल रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो जाती है, मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम का गुजर होता है। आप अलैहिस्सलाम ने उस्मान से कहा उस्मान अल्लाह जन्नत की तरफ बुला रहा है, अल्लाह की दावत को कब कबूल करोगे? सुभान अल्लाह। कहा उस्मान मैं अल्लाह का नबी हूं, अल्लाह का आखिरी पैगंबर हूं, अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी इंसानियत की हिदायत के लिए मुझे भेजा है। क्या मेरी नबूवत पर ईमान न लाओ?
जाओगे, क्या अल्लाह की जन्नत में न जाओगे? उस्मान गनी ने, अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद अरबी की बात को उस्मान गनी के दिल में डाल लिया। कहा हाथ बढ़ाइए या रसूल अल्लाह, और कलमा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ करके सुभान अल्लाह ये मुसलमान हो जाते हैं। आप जानते हैं इनके इस्लाम कबूल करने से मुसलमानों को कितना बड़ा फायदा हुआ, मुसलमानों में खुशी आ गई। सुभान अल्लाह। क्यों? बहुत बड़ी बात है जो मैं आपके हवाले करने जा रहा हूं, और वक्त का भी मुझे ख्याल है, वक्त की पाबंदी भी मेरे ऊपर लाजिम है, और हर खुतबा को चाहिए, इस मिंबरे रसूल पे खड़े होने वाले हर उलमा खुतबा की जिम्मेदारी है सुभान अल्लाह, ये वक्त का ख्याल करे, पाबंदी करे। मैं उन्हीं में शामिल होकर के इंशाअल्लाह वक्त पर अपनी बात खत्म करूंगा। सुनिए, इन्होंने जब इस्लाम कबूल किया ना, मुसलमानों को इतनी खुशी हो गई। क्यों जानते हैं? एक तो ये मालदार थे, रईस आदमी थे, अल्लाह तबारक व तआला ने इनको माल और दौलत से नवाजा था, इसलिए उस्मान को गनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उस्मान गनी। क्या नाम है इनका? उस्मान गनी इनको बोलते हैं, और गनी कहते हैं मालदार को सुभान अल्लाह। और जानते हैं दौलत जब इंसान के पास आती है, माल जब इंसान के पास आता है ना, इंसान बदल जाता है, तरीका बदल जाता है, रहने सहने का अंदाज बदल जाता है, गुफ्तगू का अंदाज बदल जाता है, देहात से शहर में आ जाता है और शहर से बड़े शहर में चले जाता है, आलीशान घर को पसंद करता है, रहने सहने का सिस्टम बदल जाता है। यही वजह है, लोगों ने लिखा है, उलमा लिखते हैं, दौलत जब आती है ना, अपने साथ फितने को लेकर के आती है। दौलत अपने साथ फितने को लेकर के आती है, इंसान बदल जाता है सुभान अल्लाह। दौलत आने से पहले कुछ और जिंदगी जी रहा है, दौलत आने के बाद पूरी तरीके से बदल जाता है। उस्मान गनी एक ऐसी शख्सियत है सुभान अल्लाह, और रईस हैं, खानदानी मालदार है, दौलत आने के बाद भी उस्मान गनी में तब्दीली ना आई। क्यों जानते हैं? ये मालदारों के लिए, मैंने कहा उस्मान गनी जहां नौजवानों के लिए आइडियल है, समाज बिगड़ जाए, मुआशरा बिगड़ जाए, आप सही बनना चाहो, रब्बे जुल जलाल की कसम है तुम्हें कोई बिगाड़ ना सकेगा। और सुनो, अगर अल्लाह तबारक व तआला माल, अल्लाह से माल मांगो, और मांगना चाहिए। दौलत का आना ये बुरी बात नहीं है। बाज लोग कहते हैं दौलत आए तो ये देखो, दौलत माल होने से, देखो इस्लाम ने कहा है माल कमाइए, खूब कमाइए, मेहनत कीजिए, दौलत इकट्ठा कीजिए। क्यों जानते हैं? दौलत से मसाजिद बनते हैं, मदारिस बनते हैं, यतीम खाने बनते हैं, मुसाफिर खाने बनते हैं, इसी तरीके से लाइब्रेरियां बनती हैं, लोगों की पढ़ाई लिखाई होती है, अच्छे अच्छे काम होते हैं। इस्लाम ने दौलत कमाने से, माल कमाने से मना नहीं किया है। यही वजह अल्लाह तबारक व तआला ने माल को अपना फजल कहा। क्या कहा? अपना फजल कहा। अल्लाह ने एक जगह माल को खैर कहा है, व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद। तो माल कमाने से इस्लाम ने मना नहीं किया है। माल कमाइए, मेहनत कीजिए, हलाल माल कमाइए, अल्लाह से यह भी दुआ कीजिए अल्लाह दिल उस्मान गनी की तरह दे। सुभान अल्लाह। समझ रहे? माल आना अच्छी बात है, और दिल को भी अल्लाह तबारक, जैसे ये दुआ कीजिए, जैसे दुआ करते हैं ना अल्लाह औलाद दे, तो ये दुआ कीजिए अल्लाह नेक औलाद दे। ऐसे अल्लाह ताला से जब माल मांगिए ना, तो ये दुआ कीजिए अल्लाह माल आ जाए, उस्मान गनी की तरह दिल भी आ जाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह हम सबको समझ नसीब फरमाए। ये उस्मान गनी, ये मालदारों के लिए सुभान अल्लाह, रईस लोगों के लिए, असहाबे सरवत के लिए ये उसवा है, आइडियल है, नमूना है। यही वजह है सुभान अल्लाह उस्मान गनी के बारे में आता है, हर जुमा हर जुमा हर जुमा एक गुलाम खरीद करके अल्लाह की राह में आजाद करते थे सुभान अल्लाह। और जिस जुमा अगर मौका नहीं मिलता था, आइंदा जुमा 2 गुलाम खरीद करके अल्लाह के लिए आजाद करते थे सुभान अल्लाह। इनकी मालदारी पर बात करेंगे, पहले कुछ 2 बातें और कर लेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहली बात है ये, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये हाफिज़े कुरान थे। क्या थे?
30 साल की उम्र में, सुभान अल्लाह, अगर इन्होंने इस्लाम कबूल किया तो ये हाफिज कुरान थे। सारा कुरान उस्मान गनी के सीने में मौजूद था, सुभान अल्लाह। और जो उंगलियां काटी गई थी उस्मान गनी की मैं इंशाअल्लाह बताऊंगा। आज जुमा अगर मौका ना मिला तो आइंदा जुमा बताऊंगा। जो उंगलियां काटी गई थी उस्मान गनी की, उसी उंगलियों से सुभान अल्लाह उस्मान गनी ने कुरान लिखा था। आज भी कुरान के वो नुस्खे मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह। जानते हैं, कुरान से बड़ी मोहब्बत थी, कुरान की तिलावत कसरत से करते थे। दुआ करें, बहुत बड़ा ये मजमा है, बहुत बड़ा ये मजमा है। अल्लाह ताला सभा को कुरान कसरत से पढ़ने की अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। समझ करके पढ़ें, तदब्बर आ जाए, फहम आ जाए, गौर फिक्र का मादा आ जाए। यही वजह है उस्मान गनी फरमाते, जिस दिन मैं कुरान को ना देखता था सारा दिन ये बेचैन हो जाते थे, सुभान अल्लाह। कुरान से बड़ी मोहब्बत थी, बड़ी कसरत से कुरान करीम की तिलावत करते थे। और ये फरमाया करते थे, दुनिया में 3 चीजें से मुझे बड़ी मोहब्बत है, दुनिया में 3 चीजें मुझे बड़ी चाहत है। नंबर 1, भूखों को खाना खिलाना। दुआ करे अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। बड़ा मजमा है, आपके समाज में कोई भूखा ना रहे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। कहते हैं दुनिया में मुझे 3 चीजों की बड़ी चाहत है, बहुत मोहब्बत है। नंबर 1, भूखों को खाना खिलाना। नंबर 2, बढ़ाना, बेलिबास लोगों को कपड़े पहनाना। और नंबर 3, व तिलावतिल कुरान, कुरान की तिलावत करना। यह उस्मान गनी को बड़ी चाहत है। यही वजह है कुरान मजीद की फजीलत पर सारे उलमा, सारे खुतबा यहाँ जितने मौजूद अल्हम्दुलिल्लाह, इनमें अक्सर कोई हदीस याद होगी। कुरान करीम की फजीलत पर जो हदीस आई है उसके रावी उस्मान है। कौन है? क्या है वो? खैरुकुम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। फरमाते मोहम्मद रसूलुल्लाह, तुम में सबसे बेहतरीन आदमी वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। ये मशहूर हदीस है, इसके रावी है उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला। मेरे भाइयों चलिए, और ये भी कहा करते थे, लौ तहुरत कुलूबुना मा शबियत मिन कलामिल्लाह। अगर दिल आपका पाक है, कुरान पढ़ने से आपका जी नहीं भरेगा, सुभान अल्लाह। दिल अगर पाक है, दिल अगर साफ है, कुरान पढ़ते जाएंगे, कभी कुरान पढ़ने से जी नहीं भरेगा, सुभान अल्लाह। दुआ करे अल्लाह ताला हम सभी लोगों को कसरत से कुरान मजीद की तिलावत करने की अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। बात हो रही है उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, तो सुनिए मैं आपको बताऊं, यही वजह है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बेटी का जो निकाह और रिश्ता उस्मान गनी से किया। पहले आपकी दोनों बेटियों का रिश्ता अबू लहब के दोनों बेटों से हुआ था, उतबा और उतैबा से हुआ था। रुखसती नहीं हुई थी। उस जमाने में शादी हो जाती थी, रुखसती बाद में अमल में आती थी। बाद दफा ऐसा भी हो जाता था, शादी हो गई, रुखसती भी अमल में आ गई। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटियों पर अल्लाह का फजल करम देखें, बेटियों का रिश्ता हो गया, रुखसती नहीं हुई। किससे हुआ? अबू लहब के दोनों बेटों से, रुकैया का और उम्मे कुलथुम का रिश्ता हो गया। लेकिन जब सूरतुल लहब नाजिल हुई ना, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, जब ये कहा गया अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं, हिलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए, तो अबू लहब ने अपने बेटों को उकसाया, कहा मोहम्मद की बेटियों से निकाह न करना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिश्ता तलाक दे देगी। आप अलैहिस्सलाम ने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह बहुत बड़ा है, बेटियों के रिश्ते का इंतज़ाम अल्लाह करेगा, पैदा उसने किया है, इंतज़ाम वो करेगा। चुनांचे उस्मान गनी को खबर हुई कि आपकी दोनों बेटियों को तलाक दे दी गई है। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने फौरन मौके को गनीमत जाना और रिश्ते निकाह, पैगाम निकाह फौरन उन्होंने भेज दिया आप अलैहिस्सलाम के पास कि मैं आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, आप अलैहिस्सलाम ने रिश्ता मंजूर कर लिया और आप अलैहिस्सलाम की जो बेटी थी ना रुकैया, इनसे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का निकाह हो गया। निकाह हुआ,
रुखसती की बात आई, आप अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी रुकैया को बुलाया। हर बाप जितने यहाँ मौजूद हैं अपनी बच्चियों को नसीहत करें। अपनी बच्ची को बुला करके कहा, देखो मेरी बेटी रुकैया, आप उस्मान की ज़ौजियत में जा रही हो, शौहर का अच्छा ख्याल करना, शौहर के साथ अच्छा बर्ताव करना। उस्मान का अखलाक मेरे जैसा है। सुभान अल्लाह, इतनी बड़ी गवाही इस कायनात में उस्मान गनी के बारे में अगर किसी ने दी है, इमामुल अंबिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने दी है सल्लल्लाहु। कहा बेटी उस्मान के अखलाक मेरे जैसे हैं। कहा बेटी उस्मान का चेहरा इब्राहिम की तरह मिलता है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ख्याल करना, शौहर की खिदमत करना, अदब एहतराम करना। रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा गई, उस्मान गनी के साथ ज़िंदगी गुजारने लगी। बात काफ़ी तवील है। जब ऐसा मौका आया, और जानते हैं उस्मान गनी ये वाहिद सहाबी है जिन्होंने 2 मरतबा हिजरत की है अपनी फैमिली के साथ। पहली मरतबा हबशा गए थे रुकैया को लेकर के, दूसरी मरतबा हुक्म आया मदीना चले आओ, अपनी बीवी को लेकर के मदीना आए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया पूरे तारीख में लूत अलैहिस्सलाम के बाद किसी ने अपनी फैमिली के साथ अल्लाह की राह में हिजरत किया है, मेरे दामाद उस्मान है। सुभान अल्लाह। मदीना आए, पहली लड़ाई मुसलमानों की हुई, गज़वे बद्र। रुकैया बीमार हैं। उस्मान गनी ने कहा, या रसूलल्लाह जंग में शामिल होना चाहता हूं, बद्र की लड़ाई में शामिल होना चाहता हूं। अल्लाह के नबी ने कहा, उस्मान बीवी बीमार है, पहले बीवी की खिदमत करो, तीमारदारी करो, बीवी की देखभाल करो। बद्र में शामिल न हो सके, बीवी की खिदमत करते रहे, देखभाल करते रहे, तीमारदारी करते रहे। इतने में इधर बद्र में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाई। जश्न, खुशियों का पैगाम लेकर के बद्र से 313 मुसलमान वापस आ रहे हैं। मदीने में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कदम रखा। किसी ने कहा, या रसूलल्लाह आपकी बेटी रुकैया का इंतकाल हो गया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, और पढ़ करके आपने कहा मेरी बेटी रुकैया की कब्र कहाँ है, दिखाओ। बताया गया बकीए गरक़द कब्रिस्तान, मदीने का मशहूर कब्रिस्तान है, वहां बताया गया। आप अलैहिस्सलाम कब्र पर गए, अपनी बेटी रुकैया के लिए मग़फ़िरत की दुआ की, बख्शिश की दुआ की। इधर आप अलैहिस्सलाम ने देखा उस्मान गनी बीवी के इंतकाल के बाद निढाल हो गए हैं, परेशान रहते हैं, चेहरे पे उदासी रहती है, तबीयत में बिल्कुल इस तरीके से ऐसा होने लगा जैसे उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिंदगी का कोई बहुत बड़ा सरमाया गुम हो गया है। बेचैन रहने लगे। आप अलैहिस्सलाम ने महसूस किया तो आप अलैहिस्सलाम ने क्या किया, अपनी दूसरी बेटी जिनका नाम आता उम्मे कुलसूम, उनका निकाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान गनी की ज़ौजियत में दे दिया। जानते हैं यही वो सहाबी हैं जिनको ज़ुन्नूरैन कहा जाता है, 2 नूर वाले, नबी की 2 बेटियां सुभान अल्लाह इनको नसीब हुई थी। रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ात के बाद उम्मे कुलसूम से निकाह होता है उस्मान गनी का। ज़िंदगी चल रही है। एक वक्त ऐसा आया, सन 8 हिजरी या 9 हिजरी की बात है, उम्मे कुलसूम भी बीमार पड़ गए सुभान अल्लाह। और ऐसी बीमारी आई कि उम्मे कुलसूम का भी इंतकाल हो गया। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह को खबर दी गई। आप अलैहिस्सलाम आए, आपने अपनी बेटी के नमाज जनाजा पढ़ी सुभान अल्लाह। आपकी 2 बेटियां आपकी आंखों के सामने आपकी हयात तैयबा में इंतकाल कर गई। एक पैगंबर के लिए इससे बड़ी आजमाइश और इम्तिहान क्या हो सकता सुभान अल्लाह। आप अलैहिस्सलाम ने नमाज जनाजा पढ़ाई, अपनी बेटी को अपने हाथों से दफन किया। उस्मान गनी तमाम सहाबे कराम ने मिलकर के दफन किया। इधर उसके बाद हाल ये था, खुद पैगंबर की आंखों से आंसू बह रहे हैं। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद रोए जा रहे, बेचैन, तबीयत में उदासी। दूसरी बेटी अल्लाह के नबी ने अगर मुझे दिया था वो भी इंतकाल कर गई, गम में डूबे हुए हैं। आप अलैहिस्सलाम ने उस्मान गनी के कंधे पर हाथ रख करके कहा, या उस्मान लौ काना इंदना सालिसतुन, ऐ उस्मान अगर आज मेरी तीसरी बेटी होती ना, इसे भी तेरी ज़ौजियत में दे देता सुभान अल्लाह। ऐ उस्मान मैंने 2 बेटियां तुम्हें निकाह में दी थी, जानते हो मेरी तरफ
طرف سے نہیں، یہ آسمان سے پیغام آیا تھا. سبحان اللہ. دیکھ رہے ہیں، داماد ایسا ہونا چاہیے، داماد ایسا ہونا چاہیے. پیارے نبی محمد رسول اللہ نے اپنے داماد کی تعریف اس انداز میں کی کہ اے عثمان، آج میری تیسری بیٹی ہوتی اسے بھی تیرے نکاح میں دے دیتا، تجھ سے بہتر داماد مجھے کون مل سکتا. آج سسرال والوں کو ڈراتے ہو، داماد بن گئے ہیں، سسرال والوں کو ڈرا رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، بات بات پہ طلاق دینے کی دھمکی، گھر سے نکل جانے کی دھمکیاں دیتے ہو. اچھے داماد بنو، نیک داماد بنو، وفادار بنو، جیسے عثمان غنی تھے رضی اللہ عنہ. دعا کریں اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. اللہ ان کے جیسا ہم سبھی لوگوں کو بننے کی اللہ